Thought it is. Oh, give me a second, student. Okay. Okay, fine. Now quickly we will revise what we studied. We studied sample space when one coin is tossed, two coins are tossed, three coins are tossed, one die is thrown, and two dice are thrown. Now these are the major events. Now today there are few more sample space that we are going to discuss. Now trust me kids, the number of sample space possible could be anything. So we are not really sure exactly which sample space would come. Mostly whatever we discuss, 99% times it will only come, but you should be ready with all type of sample space. So today we will try to form a new sample space and solve sums on that. Just revising, for one coin is tossed, h comma t, two coins are tossed, hh ht th tt, three coins are tossed, hh ht th tt, hh ht th tt, hh tt. One die is thrown, 1 2 3 4 5 6. Two dice are thrown, 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6, and so on up to 6 comma 6. Now there are few sums. One sum we did on two dice are thrown. Today we will do one more sum or two dice are thrown. So quickly start solving the sum. Today we'll start with you solving the sum. Two dice are thrown. A is an event that sum of the number on the upper face is at least 9. B is the event that sum of the number on the upper face is divisible by 8. C is the event that sum of the number on the upper four on both the faces is same number on both the faces. First write two dice are thrown, write the sample space n of s. Quickly start. Quickly. I hope everybody can hear me. Okay, Purva. Great. Anybody who wants to discuss the sum, first start writing. I'm giving you 5 minutes time. Quickly solve the entire sum. Gaurav Singh, waiting for what? You want me to wait for what? For you to solve the sum? Yes, I'm waiting for 5 minutes. I hope everybody has written the sample space. This is not a textual sum. This is not a textual sum. I have told you I'm going to mix textual and non-textual sum. Trying to involve few questions which can be asked. First, you have to define the event, whether it is given in the question or not. Question में बोला है कि event A है, इसके लिए लिखेंगे A is the event that sum of the numbers on the upper face is at least 9. अगर A नहीं दिया होता तो मैं लिखता था let A be the event. यहाँ पे let word यूज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इवेंट का नाम उन लोग ने ही दिया है. फिर n of A लिखो, फिर B क्या लिखो, फिर n of B लिखो, फिर C क्या लिखो, फिर n of C लिखो. Anybody who is done? Okay, पूरा waiting. A पूरा इवेंट पूरा सेंटेंस लिखो, फिर A में क्या क्या आएगा लिखो, फिर B लिखो, B में क्या क्या आएगा लिखो, फिर C लिखो. Now student, this chapter is easy. The challenge will be to do external sums of this chapter. Textual sums all are very easy. 2 बार ये चैप्टर कर लिया, उसके बाद पूरा साल नहीं किया ना तो भी याद रहेगा. ऐसा चैप्टर है. The best part of this chapter is that. There is something that we need to discuss about set theory and non-set theory that I have to discuss with you at the end of the lecture. Please remind me somebody about that. I want to discuss that because there are few sums which do not follow set theory. Okay, Raj has completed it. Perfect. So I will define A. Raj will discuss with me event A till then, till others are finishing.
Hi Raj. Hi Raj. Hello, sir. Good evening, Raj. Good evening, sir. How are you? Fine, sir. Okay. See, Raj, you have to help Sneha understand this. Okay. Now, Sneha has told she has not understood this. So, not a problem, Sneha. Raj and me together we will explain you, and then Sneha let us know whether you have understood or not. Okay, Raj? Ready? Yes, sir. Yes. Okay. Event A is such that sum of the number should be at least 9. इसको समझा सकते हो राज मुझे? It should be 9 or more than 9. Perfect. Exactly what Raj says is sum of both the numbers. दोनों को ऐड किया तो या तो 9 होना चाहिए या तो 9 से ज्यादा. तो सबसे पहला क्या ढूंढेंगे राज? 6 will write the sample space. सैंपल स्पेस. सब सैंपल स्पेस तो लिख दिया. ए अभी ए में अपन लिखेंगे क्या क्या आएगा, राइट? Yes, yes. अच्छा, ए में क्या क्या आएगा? 9 एंड मोर देन 9. एज आई टॉट यू, ये जो लाइन है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये सब 9 है. Yes. 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. 6,3. Yes. अभी And मुझे right hand side राज, all. हाँ, ऊपर वाला लिखूं कि नीचे वाला लिखूं? नीचे वाला. नीचे वाला. एग्जैक्टली व्हाट ही व्हेन ही टोल्ड राइट हैंड साइड इज राइट. नीचे वाला मेरे को सब कुछ लिखना पड़ेगा, Yes, sir. राइट? तो फिर Yes. मेरे इवेंट ए में क्या क्या आएगा? मेरे इवेंट 6,3. ए में आएगा. ओके, परफेक्ट. क्या क्या आएगा बताओ मुझे? 6,3, 5,4, 4,5, 6, 3,6, 6,4, 5,5, 4,6, 6,5, 5,6, 6,6. ओके, नाउ इफ यू सी, इनमें से किसी भी नंबर को ऐड करो तो 9 से तो ज्यादा ही आएगा. 9 से कम नहीं चलेगा. 9 या 9 Yes. से ज्यादा. तो ये जो लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है वो, और उसके नीचे वाला सब कुछ याद रखो. मतलब ये जो मैंने अभी मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, इसके अंदर जो भी आ रहा है सब कुछ लिख दिया, क्योंकि ये 9 वाला लाइन है, इसके ऊपर सब कुछ. Perfect. Now, Sneha, I want you to reply on the message whether you understood this. Neha, quickly. Tejas, write your doubts. Don't just tell me I have doubts. Write your doubts, then I can explain. Sneha Panda from Ghatkopar, if you can reply. What is your doubt? Okay. Raj, Sneha को बात करना पड़ेगा मुझे. She has still not understood. Okay. Sneha. Hi, Sneha. Hello, Sneha. Hello, Sneha, if you can speak. Hello, Sneha. See, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है. इसमें क्या बोला है? सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेसेस. ये अपर फेसेस को भूल जाओ. क्या बोला है? इज एटलीस्ट 9. अपर फेस मतलब अपन अपर फेस ही देखते हैं हमेशा. इज एटलीस्ट 9 मतलब मैं दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो 9 और 9 से ज्यादा आना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 + 1 करूंगा तो 2 आएगा. अभी ये दोनों को ऐड करता हूं तो 2 आएगा, 9 नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकता हूं. 1 + 2 को करूंगा तो 3 आएगा, तो ये नहीं ले सकता हूं, ये नहीं ले सकता हूं. 1 + 3 4 आएगा. 9 और 9 से ज्यादा चाहिए, तो 9 और 9 से ज्यादा सिर्फ ये है. तो हर एक चेक करने का जरूरत नहीं है. मैंने तुमको एक शॉर्टकट दिया था. 3,6, ये 9 वाला लाइन निकाल लिया, उसके ऊपर वाला. क्लियर? कैवल्य समझ में आया? स्नेहा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. कैवल्य समझ में आया? ओके, स्नेहा अंडरस्टूड. ग्रेट. कैवल्य समझ में आया? तेजस, डाउट लिखो. डाउट अनम्यूट नहीं, पहले डाउट लिखो क्या है. ओके, I will go ahead with the second event, and I have you're still there, Raj, with me? Yes, sir. Okay, n of a 10 आ गया. अभी तुम सबको एक्सप्लेन करो b क्या आएगा. b इसे नहीं B is divisible by 8. Please read it. Divisible So- by 8 मतलब So here the slant line will go through 2,6. So all are Okay, divisible by 8 हाँ, and समझा. nothing else is divisible by 8. अभी सम शुड बी डिविजिबल बाय 8 का मतलब क्या पहला समझो. अभी देखो सबसे पहला वाला देखो 1,1. अभी मैं इसको देखता हूं. 1 + 1 करूंगा तो 2 आएगा. अभी ये 2 ऐड करने के बाद जो 2 आया वो 8 के टेबल में जाता है क्या? नहीं. तो ये इवेंट बी में नहीं आ सकता है. वैसे 1,2, तो 1,2 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 3.
अभी 3 8 का टेबल में जाता है क्या? नहीं, 8 का टेबल लिखो पहला। 8 1s are 8, 8 2s are 16, ऐसा। तो अभी ये दोनों को ऐड किया तो भी 8 का टेबल नहीं आ रहा, ये दोनों को ऐड किया तो भी 8 का टेबल नहीं आ रहा। अभी 1,3, 1 + 3 4 आएगा। 4 8 के टेबल में जाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर अभी ऐसा करते रहेगा ना, मेरा जिंदगी निकल जाएगा और सम ही खत्म नहीं होएगा। तो अभी मेरे को बताओ 8 का टेबल में मतलब 8 और 16 ही आएगा। तो सबसे पहले 8 वाला ढूंढो। देखो 2 + 6 8 आ रहा है, तो कोई भी एक 5 + 3 8 आ रहा है, कोई भी एक ढूंढ लो। ये पूरा लाइन 8 है और कोई 8 है ही नहीं। तो 8 वाला तो मिल गया। अभी 8 2 16, 16 हमको मिल सकता है क्या? आज हमको 16 मिल सकता है? No, sir, because क्यों नहीं total मिल is सकता? 12. यस, सबसे बड़ा 12 है, क्योंकि 6 + 6 12 है। तो 16 आ ही नहीं सकता। तो हमारे ए में सिर्फ ये नंबर्स आएंगे, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2। समझ में आया राज? Yes, sir. परफेक्ट। एनी एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ओके, तो अगर मैं इवेंट बी लिखूं 2,3, 3,5, एन ऑफ बी कितना आया? 5। अभी सी मेरे को बताओ, सी राज। C is the event that the same number on the upper faces of the both sides. मतलब दोनों तो डाई में सेम चाहिए, तो क्या आएगा? 1,1, 2,2, 3,3, 1,1, 4,4, 2,2, 5,5, 6,6. 3,3, 4,4, 5। परफेक्ट। देखो राज ने एकदम सिंपली बता दिया। अभी ये भी डायगोनली है एक्चुअली। देखो जहां पे दोनों नंबर सेम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डाई में भी और सेकंड डाई में भी दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। समझ में आया सबको? थैंक यू सो मच राज। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। तो एन ऑफ सी मैं भूल गया राज को पूछने। तो एन ऑफ सी विल बी 6। हाँ, लहर बहुत फास्ट है, पहले से बता के रखा है उसने हमको। एन ऑफ सी विल बी 6। वेरी नाइस लहर। Okay, I believe this sum is clear. This sum is clear, and we can go to the next sum. Any doubts in this sum before we go ahead? Any doubts in this sum, students? Okay, okay, perfect, perfect, perfect. Gaurav, yeah, if you're writing, it should have been done. I think I've spent a lot of time on this sum. हाँ, 2 dice of thrown का sample space लिखने को time लग जाता है। मेरे लिए easy था, मैंने click पे लिख दिया। Yeah, I will pick up people to answer. I hope everybody is done and nobody has a doubt. Event C में सुश्रुत डाउट है। Event C का मतलब क्या बोला है? हाँ, you can take a screenshot, please, please. अगर लिखना रहेगा तो screenshot ले लो। Event C is same numbers on both the die. 1,1 दोनों same रहना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दोनों same है। इसके लिए ये I hope I can go to the next sum. आज हम लोग कुछ नया इवेंट लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे और उसके बाद हम लोग कार्ड्स के बारे में सीखेंगे। कार्ड्स, तो जिसके पास घर पे कार्ड्स है ना, रेडी रखना, हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्ड्स के बारे में, ठीक है? एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। एटलीस्ट 5 मतलब 5 और 5 से कम, एट मोस्ट 5 मतलब 5 और 5 से ज्यादा। I hope that answers your at least and at most का doubt. Don't worry, we will take few more sums of at least and at most, समझ में आ जाएगा। See, it's all about English also in this sum. Okay, now next. Sample space कितना लिखा सिर्फ, तो कितना मार्क्स लिखेगा? स्टूडेंट्स में भाजी नहीं बेच रहा है सर, सिर्फ इतना लिया, आधा किलो लिया तो कितने में पड़ेगा? Let us not bargain. Okay, now listen. Form a 2-digit number using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास नंबर्स है, अपने को सैंपल स्पेस लिखना है। नाउ आई नीड समबडी टू हेल्प मी। हु विल हेल्प मी? अच्छा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम बोला मैंने। प्रीत, यू हैव आंसर्ड मेनी टाइम्स। हितेश, यू हैव आंसर्ड मेनी टाइम्स। Okay, I will pick up somebody. I'll pick up Khushi from DN Nagar. Hi Khushi. Hello, sir. हाँ, तो you have to answer, okay? Okay, sir. Dhanush, you are wrong. हमको 2-digit number form करना है, ठीक है? Using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, I want to see क्या बोला है, without repeating the digits.
अभी है ना, अपना बोर्ड इतना स्मार्टली खेलता है ना ये चैप्टर में, ऑलमोस्ट एवरी सम में विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स दिया है, और टेक्स्ट बुक में एक सम में बोला है रिपीटिंग द विथ रिपीटिंग द डिजिट्स, या फिर रिपीटिंग द डिजिट इज अलाउड। तो यू हैव टू बी केयरफुल, रीड केयरफुली, हर बार सेम तरीका होगा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले खुशी, मैथ में कितने डिजिट्स होते हैं? हाँ सर। मैथ में कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9 10। परफेक्ट। आई बिलीव सबको समझ में आया कि मैथ में डिजिट्स इतने ही होते हैं। तो मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, तुमको मुझे 2 डिजिट नंबर बना के देना है ये डिजिट्स यूज करके। 0 1 2 3 4 5 अपने सामने है, ये डिजिट्स यूज करके मेरे को 2 डिजिट नंबर बना के दो। ओके। तुमको स्क्रीन पे मैं क्या लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना खुशी? यस सर। ओके, बताओ क्या क्या आएगा? 10। अच्छा, 0 से नहीं चालू करूँ? 0 1 नहीं चलेगा? 0 1 सर वो 0 तो 1 डिजिट हो गया ना फिर। हाँ बात है। आई होप सबको समझ में आया कि मैं 0 1 से नहीं चालू कर सकता हूं, क्योंकि 0 1 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। खुशी, मुझे इस बात ये जानकर खुशी हुई कि तुमको ये समझ में आया। तो पहले मैं क्या लिखूं? 10 10 20 30 40 50। एक सेकंड, ऐसा करोगे ना तो बैंड बजेगा। अपन क्या करेंगे, पहला 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 वाला यूज कर लेंगे, ठीक है? पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 10 10 11 लिखूं? 11 नहीं सर, रिपीटिंग डिजिट्स नॉट अलाउड। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान दो। इस पे क्या बोला है? रिपीटिंग ऑफ, क्या किया मैंने मेरे पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दो इधर। रिपीटिंग ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड लिखा है, मतलब 1 1 2 2 3 3 चलने वाला नहीं है। तो ये मैं निकाल देता हूं, 11 नहीं चलेगा। तो फिर 12, फिर क्या आएगा? 13 13 14 15। 50। अच्छा, ये 15 के बाद कॉमा कंपलसरी है। अभी 1 0 से चालू नहीं कर सकता था, अभी 1 से चालू कर दिया, अभी 2 से चालू करो। क्या क्या आएगा बताओ? 20 20 21 21 23। 22 क्यों नहीं लिखा? रिपीटिंग डिजिट्स नॉट अलाउड। Repeating the digit is not allowed. We have to keep on repeating. फिर 24 24 25। 25। ओके, फिर 24 और 25 के बीच में। अच्छा, कॉमा आ रहा है, स्लो आया थोड़ा। हाँ, फिर आगे आगे जल्दी बताओ, फिर क्या आएगा? सब लोग बताओ, फिर फटाफट बताओ। 30 31 हम्म, 32 हम्म, 34 35। 35 33 क्यों नहीं लिखा? रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। फिर क्या आएगा? 40 41 42 43 45। 44 नहीं लिखा क्योंकि रिपीटिंग ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। 50 51 52 53 54। एक मिनट। हाँ, 51 52 52 53 54। अच्छा, तो एन ऑफ एस बता सकते हो मेरे को कितना आएगा? और 25। एन ऑफ एस आ गया 25। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। आई होप सबको समझ में आया। सर वो बोली ना 22 20 11 रिपीटेड है, तो काय को पूछते हो कि नहीं? दैट इज माय चॉइस, नो तेजस। There is something that I want to emphasize, and if you have a problem you can stay out of the lecture. Tejas, okay? Okay, Khushi, what I was trying to do was, हम लोग रिपीटिंग द डिजिट नॉट अलाउड में इसको ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा था? क्योंकि ना एक बार ना बोर्ड में ऐसा सम आ चुका है, इनफैक्ट अपने टेक्स्ट बुक में भी एक कोने में एक सम है, मैक्सिमम सम्स में रिपीटिंग द डिजिट इज नॉट अलाउड है, लेकिन एक एग्जाम में सम ऐसा लिखेगा वेयर रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ऐसा लेंगे क्वेश्चन में। और कभी उन लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देंगे वेयर रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो 11 22 33 44 55 भी आएगा। याद रखना। तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना। ओके, मेक सेंस? नाउ आई थिंक एवरीबडी कैन सॉल्व द एंटायर सम। आई विल वेट फॉर 5 minutes. थैंक यू सो मच खुशी। Everybody start solving the sum. इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी लिखो। ये टेक्स्ट बुक का सम है 5.3 का फोर्थ सम। दिस इज 5.3 का फोर्थ सम। एवरीबडी स्टार्ट सॉल्विंग द सम, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स। यस, श्रेय राणे विल आंसर, डोंट वरी, श्रेय विल आंसर।
Hi Shrey. Hello, sir. Shrey, we'll wait for 2 minutes and then we will discuss the answer. Okay, we'll wait Okay, for okay. everybody to write. You have Okay. completed writing the sum. Yeah, for A it is over. हाँ, तो बी सी तुम तब तक लिखो, बी और सी भी Okay, मैं okay. तुमको सब पूछूंगा, सब लोग लिखो. सैंपल स्पेस रख लेता हूँ सामने. n of s 25. Honestly, कंप्लीट तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं हुआ. Everybody is done solving? Students, do not forget to follow our page after the lectures. Okay, Vedant is done. Yadnesh has done. Sir, I have done. Can I answer? No. Shrey is answering now. So if they have not mentioned about repeating the digits, then what to do? If they have not mentioned about repeating the digits, Shivani, then repeat the digits. तो 11, 22, 33, 44, 55 ये भी आएगा. अगर repeating the digits not allowed ऐसा लिखा नहीं है या फिर allowed लिखा है तो. Okay, 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 okay. Done, 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 done. Most of you are done. Shrey ready? Yes. Okay. Shrey पहला हम लोग event A लिखेंगे, ठीक है? Event Yes. A is an event, then the number formed is an even. तो तुम मुझे बता सकते हो इवन नंबर में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? 10, 10, 12, 12, 14, 14, 20, 20, 24, 24, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 40, 40, 42, 42, 50, 50, 52, 52, 54. 54. श्रेय तुमको मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? हाँ. ओके. तो आई थिंक ये वाला बहुत सिंपल था जैसा श्रेय ने बताया. राइट ऑल द इवन नंबर्स दैट आर देयर. एन ऑफ एस कितना आया श्रेय तुमको? एन ऑफ ए 13. 30. परफेक्ट. एवरीबॉडी इज डन? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अभी बी. श्रेय बताओ बी. नंबर डिविजिबल बाय 3 जो 3 के टेबल में जाता है. तुम बताओगे वही लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा. बी 12. 12. सबसे पहला देखो 12. कैसा कैसा चेक करूं श्रेय कि 3 से डिविजिबल है क्या नहीं? 3 का टेबल लिखो. 3 का टेबल या फिर मालूम है एक छोटा सा टेक्निक है. दोनों को ऐड करो. अगर 3 का टेबल में जाता है तो नंबर 3 में जाता है. हाँ हाँ हाँ. फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 3 है तो 3 का टेबल में जाता है. 12. फिर 15. 15. 1 + 5 6 है. 6 3 में जाता है तो 15 6 में जाता है. Yes. फिर 21. 21. 2 + 1 3 है. 3 3 में जाता है तो 21 3 में जाता है. फिर 24. 24. 2 + 4 6 है. 6 3 में जाता है तो 24 6 में 3 में जाता है. फिर 30. 30. 3 + 0 3 है. 3 3 में जाता है तो 30 भी 3 में जाता है. And 42. एंड 42. और कुछ नहीं आएगा? 42? 42 आएगा ना? बराबर बराबर है. 4 + 2 6 है ना? और कोई आएगा? 45. 45 और 51. 51. वेरी नाइस. और And 54. 54. परफेक्ट. श्रेय तुमको मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ. बिकॉज मौरविका फ्रॉम चेंबूर इज सेइंग कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है. ओके तो मतलब उसके एंड से प्रॉब्लम होगा शायद. तो श्रेय ने मेरे को बताया है सब आंसर्स परफेक्ट. श्रेय एक मिनट, मेरे सामने से एक टूल बार हटा देता हूँ ताकि मैं भी देख पाऊँ क्या आ रहा है. एन ऑफ बी कितना आया? 9. 9. परफेक्ट. अभी यही सम के लिए एन ऑफ सी. सी इज एन इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50. क्या क्या आएगा? सर 50 काउंट कर सकते हैं ना इसमें? ग्रेटर देन 50 तो 50 नहीं काउंट करेंगे. ओके. 50 सुनो, एटलीस्ट 50 बोला होता ना. अभी जिसको एटलीस्ट और एटमोस्ट का समझना है, एटलीस्ट 50 बोला होता ना तो मैं 50, 51, 52, 53, 54 लेता था क्योंकि 50 एंड मोर देन 50.
एट द Okay. मोस्ट 50 बोला होता ना तो मैं 50 और 50 से कम ले लेता था, 10 से लेके 50 तक। अभी ग्रेटर देन 50 बोला है तो 50 ग्रेटर देन 50 है क्या? नहीं, 50-50 है। ओके ओके तो क्या क्या आएगा श्रेय बताओ? 51 51, 52 52, 53 54 एन ऑफ सी। 4 परफेक्ट श्रेय, थैंक यू सो मच। समझ में आया ना ये सम? yes Perfect. Thank you. Thank you. I think the sums are very simple. I think I can go ahead with the next sample space, students. Next sample space पे जा सकता हूँ. Everybody has done. Write done if you are done. Done, 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 done. Okay, everybody is saying done. If you are not done, students, if you are a bit slow in writing, I understand. I would ask you to take a screenshot, or you can always copy this from the video. Next sum. Now, this is a tricky one. Who is going to? Now, this is a tricky sample space to be formed. Who is going to be ready to talk to me and discuss, tell me how to form the sample space? Others, what is your doubt? Srushti Desai from Takshila. Others, you can mention me your doubt. Hi, Srushti. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Just a minute. Others had a doubt. I am waiting for others. If you are not writing your doubt, okay. The others, you can always coordinate with me otherwise. Achha, Khushi has already understood the. Okay. Abhi hai na, Srushti, Yes, sir. we will write the sample space of this. Okay. 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 You have any idea how to write it, or you want me to start helping you at the beginning? Sir, can you start? Yes, yes. Okay. सबसे पहले कितना men है? 3. 3 men. कितना women है? 2 women. 2 women. तो सबसे पहले ना इनको नंबर देने का, ठीक है? पहले 3 men को सबसे लिखूंगा let. सब लोग लिखो let the 3 men be M1, M2, M3 and 2 women be W1, W2. अब इसमें ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स करता है, याद रखो. Others, the message has gone up. We will discuss about your doubts. You can talk to me personally later on. I will clear your doubt. Don't worry. Okay. अभी हमको sample space लिखना है, ठीक है? सृष्टि? Yes, sir. अच्छा, क्या बोला? A committee of 2. अभी देखो, जब 1 die बोला तो एक लेता था हम लोग, HT होता था. 2 dice बोला तो HH हो गया. 3 dice हाँ. HHH हो गया. इधर भी कमिटी ऑफ 2 बोला है तो कॉमा से पहले 2 लोग आना चाहिए. Okay. कमिटी ऑफ 3 बोला होता तो कॉमा से पहले 3 लोग आता. अगर कमिटी ऑफ 1 बोला होता ना तो सैंपल स्पेस बहुत इजी होता था. M1, M2, M3, W1, W2 खत्म. NFS 5 होता था. Okay, sir. कॉम्प्लिकेट कैसे किया है? कमिटी ऑफ 2. 2. 2 लोगों का कमिटी बनाना है तो अपने को 2 लोग का पेयर बना के लिखना पड़ेगा. तो कैसे? Okay, sir. M1, M2. सुनो. सबसे पहले ना M1 के जोड़ी सबके साथ बना देंगे. Okay. अभी कॉमन मिस्टेक सब लोग क्या करता है, सब लोग M1, M2 ऐसा ब्रैकेट में लिखता है. ऐसा लिखो तुमको बोर्ड में 0 मिलेगा. ऐसा तुम लोग लिखता है और बोर्ड में 0 मिलेगा. याद रखना बच्चा लोग. तो अपने को ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सिर्फ एक में ही अलाउड है, दैट इज 2 dice और 3. तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे. पहले M1 के साथ सब बनाएंगे, ठीक है? तो पहला M1, M2. And M2. M2, M1, M3. M1, M3. 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 M1, W1. आगे M1, W1. M1, W. एक M1. मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा शायद एक मिनट मैं वापस लिखता हूँ अच्छे Okay, sir. M1, M3 तुमने बोला मुझे. फिर आएगा M1, W1. M1, W1. ओके. फिर आएगा M1, W2. M1, W2. फिर आएगा M2, M1. अच्छा M2, M1. स्टूडेंट्स आएगा क्या M2, M1? इज द तुमको पीपीटी पे क्या दिख रहा है श्रुति? सृष्टि क्वेश्चन दिख रहा है ना 5.3 क्वेश्चन नंबर 5. हाँ सर. हाँ सर. एक बच्चे ने मेल किया कि प्रीवियस सम पे स्टक हो गया. नहीं दिख रहा है सर अभी का सम. अभी सृष्टि ध्यान से सुनो.
ये M2 हाँ। M1 ना नहीं आ सकता है। ओके सर। क्यों मालूम है? नंबर में देखो, नंबर में 12 और 21 अलग अलग नंबर होता है। ओके। अभी इमेजिन करो, मैं बोलेगा अपन 2 टीम बनाते हैं, एक टीम में शशिकांत और सृष्टि और दूसरा टीम में सृष्टि और शशिकांत, अलग टीम हुआ क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब तुम ओके। M1 M2 और M2 M1 बोल रहे हो, एक्चुअली सेम टीम है। ओके। तो नंबर बोला तो अलग अलग होता है। ओके सर। तो इसमें सबसे मेन क्या पार्ट होता है कि तुम ऐसा लाइन में लिख दोगे ना, M1 M2 M3 W1 W2, स्क्रीन पे देख रहे हो ना, लाइन में लिखा है ना अपन ने। हाँ हाँ। तो कभी भी है ना, एक वाले को पीछे वाले के साथ कभी जोड़ी बनाने का ही नहीं। M1 का सबके साथ बना लिया, ओके। अभी M2 का पीछे जाने का ही नहीं, अपने को लाइफ में पीछे जाने का ही नहीं है, वैसे M2 को भी पीछे नहीं जाने का लाइफ में। तो M2 को ओके। आगे ही जाने दो। क्या क्या आएगा? M2 M3 M2 M3 M2 W1 M2 W1 M2 W2 M2 W2। क्या बात है। फिर M3 W1 क्या बात है, इतना फास्ट सीख गई। M3 W1 M3 W2 M3 W2। फिर W1 W2 W1 W2। फिर हो गया। हो गया। बेचारा W2 के लिए एक्स्ट्रा कोई बचा ही नहीं। तो N ऑफ S कितना आएगा, गिनो? 1 2 3 4 4 4 8 10। 10। समझ में आया? हाँ। Okay, thank you, Srushti. Everybody quickly copy down the sample space and then solve the sum also. Event लिखने को आना चाहिए, इंग्लिश आता है तो इवेंट लिखने आना चाहिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। रुद्र has done, very nice. सब लोग सैंपल स्पेस जिसका कॉपी हो गया, सम करो, सम पूरा सम। पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। N of S is 10। सैंपल स्पेस अगर लिख के हो गया, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सम। हम लोग ने सबका सबके साथ जोड़ी लिया प्रज्ञेश। पहला M1 M2, फिर M1 का M3 के साथ, फिर M1 का W1 के साथ, फिर M1 का W2 के साथ, फिर M2 का M3 के साथ, M2 का W1 के साथ, M2 का W2 के साथ, फिर M3 का W1 के साथ, फिर M3 का W2 के साथ। आई बिलीव सृष्टि और हम लोग ने जैसा किया एक टेक्निक में, लाइन एक लाइन में लिख के, फिर हम लोग पीछे नहीं गए कभी, उससे कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। याद रखो, अगर तुम लोग रैंडमली बनाओगे तो कोई ना कोई सम में फंस जाओगे। तो एक पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करना इज ऑलवेज एडवाइसेबल स्टूडेंट्स। एक टेक्निक फॉलो करना इज ऑलवेज गुड। So I think I gave the technique very nicely. Sir, if in the previous time, if there was a situation we have to find number greater than 55, then it would have been a null set. Null set आएगा आदर्श। उसका नंबर ऑफ ए, एन ऑफ ए, अगर वो इवेंट ए है तो एन ऑफ ए 0 हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट बोलता है उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, आई पिक अप पीपल। ओके, सबका लिख के हो गया? Everybody is done? Instagram ID, I won't send it on the WhatsApp group. It is Adhyan Tutorials _official. Okay, Hitesh. Okay, Hitesh. Hitesh has actually answered me, but yes, he is requesting me. So Hitesh will answer with me. Hi, Hitesh. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। कैसे हो? एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। 2 मिनट रुकते हैं, अपन शायद कोई सॉल्व करता रहेगा। अभी भी तुमने सब लिख लिया? यस सर, NFC लिख रहा हूँ। NFC लिख लो, लिख लो। हाँ। Is everybody done? Then I will allow Hitesh to answer. हितेश हो गया तो बोलो। हाँ हो गया सर। हो गया ना, परफेक्ट। अच्छा हाँ. हितेश, अभी Yes. सबसे पहला क्या बोला है? देयर शुड बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। अच्छा, जिसको एटलीस्ट का मतलब नहीं समझता है, हितेश बता रहे, सुनो। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? 1 या फिर 1 से ज्यादा। परफेक्ट, 1 या फिर 1 से ज्यादा। तो मतलब क्या नहीं से एटलीस्ट 1 वुमेन का एक और मतलब होगा कि मिनिमम, मतलब वुमेन दिखना ही चाहिए कमिटी में। हाँ। वो कमिटी नहीं लेंगे जिसमें वुमेन नहीं है। हाँ. अभी फॉर एग्जांपल सबसे पहले M1 M2 है, वो चलेगा? नो। उसके बाद M1 M3 है, चलेगा?
No. क्योंकि वुमेन होना ही चाहिए ना, एटलीस्ट एक वुमेन होना चाहिए. W1 M1 W1 चलेगा? Yes. M1 W2? Yes. M2 M3 चलेगा? No. क्योंकि वुमेन नहीं, एटलीस्ट वन वुमेन तो होना ही चाहिए. Yes. M2 W1? Yes. M2 W2? Yes. M3 W1? Yes. M3 W2? Yes. W1 W2 चलेगा? Yes. क्योंकि अरे एटलीस्ट वन बोला है, दो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना. दो से ज्यादा, दो, एक या एक से ज्यादा चलेगा. चलेगा. Jitendra, that is not a valid question. If you want to leave the lecture, go. And if you disturb me with such questions, I'll throw you out. Rohan, first write your branch name and write your doubt. What is N of A? 7. 7. B is an event that the committee should contain at least one woman, should contain one woman and one man. मतलब एक आदमी एक woman. I think ये बहुत easy है. Yes. बता मुझे क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? M1 W1. M1 W1. M1 W1. दो बार M1 लिखो. W2. M1 W2. W2. हाँ आगे. M2 W1. M2 W1. M2 W2. M2 W2. M3 W1. M3 W1. M3 W2. M3 W2. What you want to ask first, right, Rohan? Like that, I won't be unmuting everybody for every single thing will be difficult. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि वन मैन एंड वन वुमेन, तो M और W होना चाहिए. दोनों मैन नहीं चलेगा, दोनों वुमेन नहीं चलेगा. N of B कितना आया? 6. Yes. C वाला बताओ. 6. There is no woman in the committee. मतलब Woman W नहीं चाहिए ही नहीं कमिटी में. तो क्या क्या आएगा बताओ. Yes. हाँ. बताओ. M1 M2. Yes. M1 M2. Yes. M1 M3. M1 M3. M2 M3. M2 M3. तो N of C क्या आएगा? 3. 3. See students, for doubts I am not going to unmute you because it's a lecture right now. If you have a doubt, write. If I feel it can be solved right now, I will take it right now or otherwise. So don't ask me to unmute yourself for a doubt. Sir, you won't understand my doubt. If I won't understand your doubt, then I can't clear it, Rohan. Correct? क्या बोलते हैं हितेश? बराबर ना? Yes. हाँ. मेरे को रोहन बोल रहा है कि I won't understand his doubt, तो फिर मैं कैसे क्लियर करूंगा? ठीक है? Thank you. Bye. Bye 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 bye. Super easy sum. Next sum. One coin is tossed and one die is thrown. चलो sample space लिखो सब लोग. Who is ready to explain me this? Okay. Just a second. Anybody who is ready? Anybody who is ready to answer? Samiha from Villeparle. Just a second, students. Hi, Samiha. I will unmute you in a minute. Samiha More. Hi, Samiha. Samiha, you can hear me? Sir. You can hear me, Samiha? Yeah, sir. Okay, my voice is audible? Yes, sir. Yeah, sir. Okay. Samiha, you have to write a sample space of one coin is tossed and one die is thrown simultaneously. Okay, sir. Okay? Okay, tell me what will be the sample space? Sir, it would be 1H, 2H, Mhm. 3H, 4H, 5H, 6H, and 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, and 6T. Perfect, perfect. Samiha, you solve the sum with me. I'm not muting you. We'll solve this sum together. It can be also written as, I have typed it this way. अगर die और coin दोनों throw किया,
तो मैंने लिखा पहले h के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर t के साथ 1 2 3 4 5 6. Remember. Okay. Now everybody, I'm giving you 5 minutes to please solve the sum. Please solve the sum. I'm going to keep Samiha unmuted so that she can help me with the sum. Everybody till then still solve the sum. There are so many messages. I might have missed many messages only. So I'm sorry if I may miss anybody. Samia, once done, let me know. Yeah. You write n of s, write on n of s. Always write, even when not asked. Assurance of certainty. So you will the m. But you will. Then A, B, C went. Okay, many of them are done. Done, Chauhan, very nice. Samiha, you slept? No, sir. हाँ पक्का ना? हाँ, sir. Sir, done. डन ओके. तो पहला हम लोग ए डिस्कस स्पीड. अच्छा मैंने पी लिख दिया गलती से, ए ही लिखना तुम लोग. ओके मैं क्या करता हूँ, एनोटेशन ले लेता हूँ. एनोटेशन की मदद से करेंगे. ओके तो ए इज एन इवेंट, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे दैट इट इज एन ऑड नंबर. तो ए में क्या क्या आएगा बताओ समिया. H1, हेड एंड एन ऑड नंबर. एच के साथ ऑड नंबर H1, H3, H3, H5. H3 and H5. एक मिनट. यहाँ पे वो बॉक्स है ना, उसका रेक्टेंगल डाला हुआ है, तो वो कोरिलेशन थोड़ा बेटर लगता है. H3, H5. हाँ हाँ वो. ओके उसके बाद और कुछ आएगा इसमें? No, sir. ओके तो n of a क्या आएगा? 3. n of a will be 3. Perfect Samiha. Anybody has a doubt with regards to this sum? n of a के जगह पे, a के जगह पे. Kev, please explain this once again. इसमें क्या बोला Kev? कि इवेंट एक है जिसमें हेड और ऑड नंबर चाहिए. तो h के साथ ऑड नंबर, तो H1, H3, H5. I hope understood Kev. यस प्रज्ञेश डाउट लिखो. बी, बी में क्या आएगा? H2, H2, H4, क्या बोला है? हेड और टेल दोनों चलेगा लेकिन इवन नंबर चाहिए. तो H2, H4, H6, H6, फिर T2, T2, T4, T4, T6. T6. ठीक है. अभी n of b क्या आएगा? 6. 6 आएगा. n of b is 6. राइटिंग इज डिफिकल्ट थोड़ा सा. ओके
समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है? Yes, sir. अच्छा, नेहा हांडे says she did not understand the sample space. It's very simple. इन लोग ने क्या बोला? अ डाई और कॉइन दोनों थ्रो किया, तो H के साथ 1 2 3 4 5 6 और T के साथ 1 2 3 4 5 6. याद है? That's simple. सिंपल. अभी C में क्या बोला है? C में क्या बोला है? Sir. Sir. हाँ हाँ. नंबर ग्रेटर देन 7 क्या आएगा? So there will be empty set. इट विल बी एम्प्टी सेट. या तो ऐसा खाली करली ब्रैकेट बनाओ, या फिर एक और तरीका है ऐसे लिखो. याद है सेट में पढ़ा था तुम लोगों ने एम्प्टी सेट लिखने को 2 तरीका. इसको बोलते हैं 5, मालूम है ना 5? इसको बोलते हैं 5 साइन. समिया मैंने ही पढ़ाया तुमको ये चैप्टर. N of C will be 0. Okay. Okay. Yes, Shrey. Perfect. Perfect. Any doubts in this? Any doubts, students? Samia, समझ में आया क्या बोला? हाँ sir. Okay. Okay. I hope everybody has copied the sum. Okay. This is all I have. You have homework of solving question number 5, exercise 5.1 and 5.2. Everybody has to solve exercise 5.1 and 5.2. Note down the homework. Exercise 5.1, 5.2. Remember the doubt, homework, students. Remember the doubt, and do not forget to follow our page. That is Advanced Tutorials _official. Sir, event B, the sentence B is an event with an even number. Yes. Yeah, you can write it. But always follow this. When you write a sentence, follow exactly what is given in the question. Okay. Thank you so much, everybody. I hope everybody understood everything that we solved today. Dhruv sir, if you're there.